extend a warm welcome to all. Before starting today's webinar, let us seek blessings of Ma Saraswati. Thanks for a lovely presentation by offering prayer to Ma Saraswati. Geeta Ratan International Business School was established in the year 2004. The institute is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, and is approved by All India Council for Technical Education, AICTE, Ministry of HRD, and Government of India for Technical Programs, and Bar Council of India for Law Programs. GIPS is currently offering postgraduate programs like MBA, MBA International Business, and MCA Integrated, and undergraduate courses, namely BBA LLB, BA LLB, and BBA. It has been graded A by National Assessment and Accreditation Council in second cycle. It is an ISO 9001 to 2015 certified institute. GIPS has been rated A+ by State Fee Regulatory Committee, a fee committee of Government of NCT of Delhi, and rated highest grading A by Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and GGS IP University. It has been rated A by Academic Audit Council of GGS IP University consecutively for past 8 years. Also, GIPS has been rated as number 2 Pan-India by Times Business School survey consecutively for the year 2018 and 19. Geeta Ratan connects with society and its stakeholders, which are primarily students, their parents, faculty, and their family members, and consider them to be a part of extended GIPS family. COVID-19 pandemic has turned upside down much of our lives, creating financial, social, professional, and economic agitations. Keeping the mental health of our all extended family members in mind that might be facing the stress of unsureness that has been arrived with the pandemic. Today's webinar is planned based on the topic of overcoming stress of uncertainties. This webinar is organized by Internal Quality Assurance Cell and NSS Club of GIPS. Life is full of uncertainties, and there is one thing which is certain in life, that is uncertainty itself. So let's face all the odds wisely.
it's my great pleasure to welcome Sister Divya from Om Shanti Retreat Center, Gurugram. Sister Divya came in contact with the Brahmakumaris organization at her early age. She completed her MCA and completed her specialization in ASP.NET from Chandigarh and had served as professor for BCA students for 2 years. In 2012, she dedicated her life to the organization for the noble cause of building a value based society with her ability to work meticulously and amicable nature, and thereafter regularly conducts corporate trainings, lectures, and talks for various corporate houses, institutes, hospitals, and many more. She is also involved in various events serving different wings of Raj Yoga Education and Research Foundation, a sister concern of Brahmakumaris, like Administrator Service Wing, Business and Industry Wing, Education Wing, Women Wing, and others. She is an active core member and one of the coordinators of the Education Wing. It's a great honor to have Sister Divya amongst us. Without taking much time, now I would request Sister Divya to enlighten all of us with the words of wisdom. Over to you, Sister Divya. Thank you, Sister Mansi, and thanks for your wonderful introduction about me. But just one thing I just wanted to say कि हम जो इतनी सारी introduction की बात करते हैं, we just need to ask ourselves, do we really are connected with our own selves? क्या हम अपने आप से connected हैं? And if we are connected to our own selves, the introduction is a bit more, connected. We'll learn this in the session itself. So let's start the session. I am going to switch off my camera, but I am going to share my screen with the PPT. Today's topic is stress management, managing our daily-to-daily life stress. So I would like to start this session with an example, taking this example, a very wonderful example. Here we are able to see a cricket ground. अब यहाँ जो क्रिकेट का मैदान है, इसमें there is one batsman, two batsmen, there are many fielders, one bowler, one umpire, and there is a field of the situation. So यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारी लाइफ जो है, अगर हम उससे इस क्रिकेट के खेल को, क्योंकि we all very love to watch the cricket, और जब हम अपनी लाइफ को भी इस क्रिकेट के मैदान की तरह देखते हैं, so I am always on the position of the batting position, और इस बैटिंग पोजीशन में मेरे सामने को बैट्समैन के रूप में मेरे सपोर्टर्स, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स हैं, और मेरे आसपास there are many situations. अब यहाँ पर तो general situations ली गई हैं, लेकिन there are many personal filters भी as a situation हो सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया है लोकस्ट अटैक है, डिप्रेशन है, इकोनॉमी है, अर्थक्वेक है, अम्फान है, पाक टेरर है, there are many situations are there. लेकिन इसके साथ साथ मेरी डेली डे टू डे लाइफ की भी सिचुएशंस हैं, वो भी सिचुएशंस हैं जिसको मुझे डील करना है, मेरे अंदर की इनसिक्योरिटीज भी हैं, मेरे अंदर के फियर्स भी हैं. अब यहाँ पर आई जस्ट वांटेड टू आस्क, यहाँ पर यू कैन answer me in your chat, typing in your chat box by I can see, and मेरी स्क्रीन के साइड पर आप दो छोटे छोटे बॉक्स देख रहे होंगे, दैट इज माय चैट बॉक्स. थ्रू दिस चैट बॉक्स वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर, और आप मुझे क्वेरीज के आंसर कर सकते हैं. आई जस्ट वांटेड टू आस्क, ये जो बैटिंग की पोजीशन पर बैट्समैन खड़ा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब सामने से एक बॉलर बॉल, उसके सामने से एक बॉलर से बॉल आ रही है, उसको नहीं पता कि बॉल किस तरह से आएगी, सो उस बैट्समैन के लिए इस टाइम पे, इस पोजीशन पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए, जिन चीजों का ध्यान रख के शायद वो अपनी बैटिंग को बहुत अच्छा बना सकता है, और जब अपनी बैटिंग को बहुत अच्छा बनाएगा तो अपने अच्छे रन भी स्कोर कर सकता है. तो उसको क्या करना चाहिए? Yes, you can type in your chat box. Focus on ball. कहाँ से ये आ रही है, कहाँ से पकड़ी जा सकती है? Yes, right. और क्या करना चाहिए उसको? Focus चाहिए first.
बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसको क्या चाहिए, प्रॉपर गार्ड चाहिए। ओके, और टेक प्रॉपर गार्ड। क्या इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करे, बहुत अच्छे से जो है अपने रन स्कोर करे, सिक्सर करे, फोर मारे, where he can go to the highest, that is sixer. Okay, so एक बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, अब वो यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि सामने वाले बॉलर की गलती है, वो यहाँ पर ये नहीं कह सकता फील्डर की गलती है, उसने मेरा कैच पकड़ा, वो यहाँ पर ये नहीं कह सकता अरे मेरा बैट थोड़ा सा ना इधर हो गया था, या मेरी पोजीशन ठीक नहीं थी, उससे पहले ही बॉल आ गई। वो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कह सकता, उसको पता है कि वो क्रिकेट के मैदान में है और इस क्रिकेट के मैदान में उसे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, फील्डर्स डिस्ट्रैक्शन है, पीछे वाला जो विकेट लेने वाला खड़ा है वो भी उसको अगर कुछ भी तरह से उकसाए, कुछ भी कहे, लेकिन उसको हर तरह से अपने अंदर कंट्रोल चाहिए। इंटरनली उसको बहुत स्टेबल पीस चाहिए, इंटरनली स्टेट ऑफ माइंड जो है बहुत स्टेबल चाहिए, बहुत काम चाहिए, और हर सिचुएशन को देखते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए, उसकी बॉलर की चीज को चेक कर देखते हुए कि किस प्रकार से वो बॉल फेंकने जा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हुए उसको अपने बैट की पोजीशन लेनी पड़ेगी, बैटिंग पोजीशन लेनी पड़ेगी। और बैटिंग पोजीशन जैसे एक जो बैट्समैन है अपनी बैटिंग पोजीशन लेता है, ठीक वैसे ही बॉलर उसकी बैटिंग पोजीशन को समझ करके बॉल को ठीक उसी तरह से ट्विस्ट करता है। अब जितना ही बढ़िया बैट्समैन है, जितना ही हाई क्वालिटी का बैट्समैन है, उतनी ही हाई क्वालिटी का उसको, या उससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी का उसको बॉलर दिया जाता है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इतना अच्छा बैट्समैन हूँ लेकिन आज मेरा ना खेलने का थोड़ा कम मन कर रहा है, तो मेरे सामने एक छोटी सी बॉल आनी चाहिए, मेरे सामने गूगली आनी चाहिए, मेरे सामने स्लो बॉल आनी चाहिए। वो ये सब नहीं कह सकता है, उसके पास सामने से चॉइसेस नहीं है, बट उसको चॉइसेस अपनी बनानी है कि चीज किसी भी तरह से आए, बॉल किसी भी तरह से आए, मुझे उसको हैंडल करना है, मुझे उसको डील करना है, मुझे उसको कंट्रोल करना है। ठीक इसी प्रकार से लाइफ में, लाइफ के क्रिकेट में हमारे आसपास बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो फील्डिंग के लिए, कैच लेने के लिए, मुझे रन आउट करने के लिए, विकेट आउट करने के लिए तैयार, बिल्कुल रेडी है। मैं एक गलती करूं, वो कैच करे, और उस कैच करके उसकी बहुत सारी चीजें ट्विस्ट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक्चुअली में अपने आप को इंटरनली ये अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी कि मैं बैटिंग पोजीशन पे हूँ, मुझे अपने आप के साथ फोकस रहना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को काम रखना है, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ बॉल की हर ट्विस्ट को समझ करके मुझे उसके साथ खेलना है। हाँ, अब जैसे फैमिली यहाँ पर को बैट्समैन यहाँ खड़ा है, वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक बैट्समैन बैटिंग अपनी शुरू नहीं करता, और जिस प्रकार की वो बैटिंग करेगा को बैट्समैन सिर्फ उसको उसी तरह का और उतना ही सपोर्ट कर सकता है। और जब कोई सिचुएशंस आती है ना, हम जनरली बाहर की ओर देखते हैं, ये व्यक्ति को मेरी मदद करनी चाहिए, इस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, इनको मेरा ऐसा सपोर्ट करना चाहिए, इनको मेरी ऐसी मदद करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में वो कैसी मदद करेंगे, दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मी। सो मुझे पहले अपने आप को चेक करना है, अपनी पोजीशन को लेना है, और जब मैं अपनी पोजीशन को लेती हूँ और अच्छे से उस बॉल को समझती हूँ, देन मैं बाहर की ओर जो है उसका सिक्सर भी स्कोर कर सकती हूँ, मैं 4 रन भी स्कोर सकती हूँ। चलो मैं ज्यादा रन नहीं स्कोर कर पाई, बॉल इतनी ट्विस्टेड आई, इतनी ट्विस्टेड आई, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चलो मैं बॉल को बहुत अच्छे से डील कर पाई, इतना भी बहुत है। मैं रन आउट नहीं हुई, इतना भी बहुत है। मैं कम से कम रन भी नहीं बना पाई, कम से कम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस फील्ड में स्टैंड करने के लिए तक तो अपने आप को खड़ा कर पाऊं, इतनी शक्ति भी अगर यूज कर पाती हूँ, वो भी बहुत है। लेकिन मैं वहां पर कंफ्यूज हो जाऊं, नर्वस हो जाऊं, इनसिक्योर हो जाऊं, फियर में आ जाऊं, देन मैं डेफिनेटली आउट हो जाऊंगी।
सो बैट्समैन की पोजीशन पर रहते हुए पहला उसको फोकस चाहिए, अपने इनर जो मैकेनिज्म है उसको समझ करके उस पर कंट्रोल चाहिए, एंड देन इंटरनली पीसफुल होकर के डिसाइड करने की जरूरत है कि ये ट्विस्टेड बॉल आई है, इसको अंडरस्टैंड करके मुझे किस तरह से डील करना है। सो ये क्रिकेट का मैदान, चॉइसेस आर माइन ऑलवेज, बाहर से चॉइसेस नहीं आती है और सामने वाले को ब्लेम करने से भी कुछ नहीं होगा। मैं एक और एग्जाम्पल से इसको क्लियर करना चाहूंगी। हम ऑलवेज कहते हैं कि स्ट्रेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम आज दिन तक भी ये सोचते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस तो जरूरी है, स्ट्रेस को डिजीज कहा जाता है, डिस ईज, यानी कि जहां पर कंफर्टेबल नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, और जहां पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, इजी नहीं हूं, आई कैनॉट डील द सिचुएशन, मैं उस चीज को समझ करके कंट्रोल करके डील नहीं कर पाऊंगी, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं फियर में आ जाऊंगी, मैं इनसिक्योर हो जाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझने की जरूरत है कि ये स्ट्रेस किसी और की वजह से नहीं आया है। जिस तरह से जब हम दिवाली मनाते थे, पहले तो हम यही कहेंगे अभी कि सारे सिचुएशंस को देखते हुए कि हम जब दिवाली बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते थे, क्या होता था, बाहर हम गली में बाहर नेबर्स के साथ बैठ करके हम मजे करते थे, उनके साथ बैठ करके हम पटाखे भी चलाते थे। और आप सभी ने बहुत सारे पटाखे चलाए होंगे, लेकिन शायद वो पटाखे भी चलाए होंगे जिसमें एक जो है लड़ी की लड़ी बिछाते थे जमीन पर, और क्या करते थे, माचिस की तीली जलाते थे। वो जो लड़ी की लड़ी बिछी हुई है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे माचिस की तीली लगाते थे, आग लगती थी, और क्या होता था, वो लड़ी की लड़ी जलना शुरू हो जाती थी और हम बहुत खुश होते थे बचपन में। हम सभी ने वो वाले पटाखे शायद चलाए होंगे। सो आप कहेंगे कि मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, अभी मेरा आपसे इस एग्जाम्पल पे एक क्वेश्चन है, उस पटाखे की लड़ी के जलने का कारण क्या था। पटाखे की लड़ी जो हमने जलाई, माचिस की तीली लगाई, आग लगाई, पटाखे की लड़ी जल उठी और उससे आवाज होनी शुरू हो गई। वो मैच स्टिक जो थी, स्मॉल मैच स्टिक जो थी, वो उसके जलने का कारण था। अच्छा, बिगनिंग के अंदर जो लगाई हमने शुरुआत की, ओके, और क्या उसके लड़ी के जलने का कारण था, और क्या कारण था, उसकी यूनिटी कारण था जलने का। अच्छा ये आंसर पहली बार आया है, यूनिटी कारण था, कनेक्टिविटी। अच्छा, चलिए, आपने कहा आग लगाई जो, वो उसके जलने का कारण था, ओके राइट। अब उसी लड़ी को ले लीजिए, जो लड़ी अभी हम जलाने वाले हैं, उस लड़ी को आप बहुत प्यार से भगवान जी की पूजा आरती करके, हर हर गंगे बोल के उसको उठा करके आप पानी में बहुत सारे डुबकियां लगवा दीजिए, और उस लड़ी को फिर से आप जमीन पर बिछा दीजिए, और उसके ऊपर मैं कहती हूँ अभी सिर्फ चिंगारी ना लगाइए, आपने कहा कि एक चिंगारी उसका कारण था और उनके आपस की कनेक्टिविटी कारण था, एक चिंगारी ना लगाए हम उसके ऊपर, बहुत सारी आग फेंक दी, मैं कहती हूँ चलो उसके ऊपर जलती हुई लकड़ी गिरा दीजिए, क्या वो पटाखा बजेगा, पटाखे चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो जलने का कारण क्या था, पटाखों के जलने का कारण क्या था, उसके जलने का कारण क्या था, क्या वो आग थी, आग तो नहीं थी, आग तो हमने अभी भी डाली है, जलती हुई धधकती हुई लकड़ी डाली है, लकड़ी के अंदर उसको डाला गया पटाखे को, क्या कारण था, वो पटाखे के जलने का कारण क्या था, इनिशियल पॉइंट जहां से उसके अंदर का मसाला, उसके अंदर का वो जो बारूद है वो उसके जलने का कारण था, राइट। मेरे स्ट्रेस का कारण कौन है, आप क्या समझते हैं, नाउ यू आंसर मी। आपने पहले एग्जाम्पल, पहले केस में आपने कहा था कि पटाखे के जलने का कारण उसके बाहर की आग थी, लेकिन हमने आग तो उसके ऊपर ज्यादा डाली अभी, लेकिन उसको बहुत सारे पानी में भिगोया था, तो अब वो पानी से भिगोने के कारण मसाला तो उसका सारा वो हो गया, तो जिसके कारण वो जला नहीं, ठीक है, ये हमने सेकंड केस में समझा। हम कहते हैं मेरे स्ट्रेस का कारण, मेरी टेंशन का कारण
मेरी परेशानी का कारण मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे आसपास की सिचुएशंस हैं, मेरे आसपास ये जो फील्डर खड़ा है ना वो है, मेरे आसपास ये जो विकेट गिराने के लिए खड़े रहते हैं ना वो है, मेरी फैमिली मेरे स्ट्रेस का कारण है, मेरा सामने वाला बॉलर उसका कारण है, एम्पायर ने भी अच्छे से डिसीजन नहीं दिया वो मेरे स्ट्रेस का कारण है. नाउ यू आंसर मी, व्हाट इज द रीजन ऑफ माय ओन स्ट्रेस? उस एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए अपने आंसर को दीजिएगा. हमारे अंदर की वीकनेस, हमारी लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, सामने वाले को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं. व्हाटएवर रीजंस आर अराउंड मी, जो कुछ भी मेरे आसपास घटित हो रहा है वो मेरे स्ट्रेस का कारण नहीं है. आज हम ये चीज को समझ लें, जान लें. जैसे पटाखे के जलने का कारण उसके अंदर का बारूद या उसके अंदर का मसाला है, मेरे स्ट्रेस का कारण भी मेरे अंदर का बारूद या मेरे अंदर का नेगेटिव थॉट पैटर्न है. अब मुझे उस नेगेटिव थॉट पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है. मेरे स्ट्रेस को चेंज करने के लिए बाहर के व्यक्ति को परिवर्तन करने की, बाहर की सिचुएशन को खत्म करने की, चीजों को ठीक करने की जरूरत नहीं है. उसके लिए मुझे अंदर से ठीक होने की जरूरत है. मैं अंदर से ठीक रहूंगी, बाहर की चीजें जैसे भी होंगी, आई कैन बेटर डील विद दैट. अदरवाइज आई विल नॉट एबल टू डील. मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी अदरवाइज, जिसके कारण मैं उन चीजों से थक जाती हूँ, हार जाती हूँ. और मैं आपको एक चीज और बताऊं, थकने के बाद, हारने के बाद लाइफ में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब स्ट्रेस की पीक पर पहुंच जाते हैं, लोग कहते हैं हम सुसाइड कर लेते हैं, आखिर इन झंझटों से खत्म हो जाएगा. लेकिन एक चीज मैं आपको और एक क्लियर करना चाहती हूँ, डीप इन स्पिरिचुअलिटी सुसाइड करना महापाप है. क्यों महापाप है? इसका रीजन है, बॉडी के अंदर रह करके जिन सिचुएशन के कारण हम जितना डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम सोचते हैं ये बॉडी को रिलीव करने के बाद हमारी आत्मा को शांति प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. बिना बॉडी के आत्मा को रहना, उसके लिए शरीर के अंदर रह करके भोगने से भी ज्यादा कष्टदायी है. So suicide is not the solution for any of the problem of our life. लेकिन इसका सॉल्यूशन है हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, हम अपने अंदर की चॉइसेस को अच्छा करें. वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, चॉइसेस को बढ़ाने कैसे बढ़ाना है वो हम अभी डिस्कस करते हैं. हम सभी को प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं. ईच एंड एवरी पर्सन इन द होल वर्ल्ड, उनके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और हर व्यक्ति को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करना होता है. उन प्रॉब्लम से उनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता. और हर प्रॉब्लम को फेस करने के 3 तरीके होते हैं. कौन से 3 तरीके होते हैं? या तो आप देख रहे हैं कि सामने इतना फास्ट बॉलर आ गया है, इस क्रिकेट के मैदान में मैं जो खड़ी हूँ, मेरे सामने बॉलर इतना फास्ट आ गया है, वो इतनी फास्ट बॉलिंग करने वाला है, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती. या तो हम उसको मैदान को छोड़ के भाग जाते हैं, हम डील ही नहीं करना चाहते, और जिसका ऑप्शन होता है वो सुसाइड हम कर रहे हैं, या हम वहां से डिप्रेस्ड हो रहे हैं, सोच सोच के अपने आप को बुरी हालात में लेके जा रहे हैं. या तो ये चॉइस हम लेते हैं. दूसरी चॉइस है, हम बॉल को डील तो कर रहे हैं लेकिन बहुत इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं. और तीसरा है, खेलनी तो मुझे है ही, क्योंकि मैं मैदान में खड़ी हूँ, मैं मैदान से इधर उधर हट नहीं सकती. जिंदगी के मैदान में मैं खड़ी हूँ, मुझे खेलना भी है, बॉल भी आनी ही है, तो क्यों ना उसको फेस करने की कोशिश करती हूँ. तो इंटरनल पीस के साथ, वो शांति के साथ, अंदर की स्ट्रेंथ के साथ मैं उसको डील करती हूँ. दिस इज द थर्ड चॉइस. विच वन इज बेटर? ऑब्वियसली यू विल चूज द ऑप्शन 3. प्रॉब्लम्स का आना बहुत अच्छा सिम्टम्स है. कई कहते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ही ना हो. आपको याद है किसी टाइम पे, आज से अगर 4-5 साल पहले चले जाए, लॉकडाउन से पहले, हम कहते थे मुझे मेरी जॉब से, मुझे मेरे रोजमर्रा के काम से सिर्फ 1 वीक फ्री मिल जाए ना, मैं अपने लिए ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी.
तो आज हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें, भगवान ने वो मेरी इच्छा मेरी पूरी कर दी, भले कैसे भी की हो। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मुझे बहुत सारे दिन फ्री मिले थे, हाँ, और आज हम कहते हैं अरे भगवान प्लीज लॉकडाउन खोल दो, मुझे फ्री नहीं रहना है, मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू विद माय यू नो द जैसे मेरा चल रहा था उसी के साथ मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सो यहाँ पर फिर से चेक करने की बात है, मुझे जो चीजें चाहिए, जो चीजें मैं मांगती हूँ, क्या मिल जाने से, वो चीजें सब मिल जाने से क्या मैं आज फिर भी संतुष्ट रहूंगी? क्या मैं 100% सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी? जो जो चीजें मैं चाहती हूँ, मान लीजिए एक पल के लिए आपको वो सारी चीजें मिल जाए, एक्चुअली में खुशी और अपने अंदर की संतुष्टता को ढूंढना बाहर नहीं है, इंटरनल मैकेनिज्म को ठीक करने की जरूरत है। वो इनर मैकेनिज्म को हम आज समझते हैं। इनर मैकेनिज्म जो हम बात कर रहे थे बारूद की, मसाले की, वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें आउटसाइड सोर्स से आती है, देखने से, बोलने से, सुनने से, पढ़ने से, अनुभव करने से, किसी भी प्रकार की मैग से कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आई, वो जब इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमारे थॉट्स चलने शुरू होते हैं, और जैसे ही थॉट्स चलने शुरू होते हैं उस प्रकार की फीलिंग्स जनरेट होती हैं। जैसे ही प्रकार के विचार आते हैं थॉट सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसी उसमें फीलिंग्स बननी शुरू होती हैं, और फीलिंग्स को हम इमोशंस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, और जो इमोशंस, जो एक्सप्रेशन है, वो इमोशंस के आगे फिर हम मूड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम किसी इमोशन में लगातार थोड़े लंबे टाइम के लिए होते हैं, वो मूड में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं ना, आज हमारा मूड नहीं है, आज हमारा मूड थोड़ा सोने का है, आज हमारा मूड थोड़ा खेलने का है, आज मेरा मूड किसी से बात करने का नहीं है, साइलेंस में रहने का है। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग हुई है अंदर के थॉट पैटर्न से। अब जिस प्रकार की थॉट को मैंने प्रोसेस किया है वैसी फीलिंग्स की हैं, और उसका एक्सप्रेशन जो इमोशंस एंड मूड्स आ रहे हैं, उन इमोशंस एंड मूड्स को बैलेंस करने के लिए एक्चुअली फिर से काम जो करना है इंटरनल थॉट सिस्टम पे करना है। और जिस प्रकार की इमोशंस है उसी प्रकार का एटीट्यूड बनता है, मेरा बिहेवियर उससे जो है इफेक्ट होता है, और जिस प्रकार का बिहेवियर मैं करती हूँ मेरी पर्सनालिटी वैसे बननी शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, हम प्रैक्टिकली लाइफ में कई लोगों को देखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो हर टाइम इरिटेट रहते हैं, हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। हम कहते हैं ये तो हर टाइम इनकी तो पर्सनालिटी ऐसी है, फ्रस्ट्रेटिंग पर्सनालिटी है, फ्रस्ट्रेट ही रहते हैं, सदा ही इनका जब भी देखो ऐसे ही बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से थॉट पैटर्न बहुत ज्यादा मेसअप हो चुका है। हम बाहर की चीजों को मैनेज करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने इंटरनली अपने आप को अंदर से झांकना नहीं चाहते हैं। और जब तक अपने आप को इंटरनली चेक नहीं करेंगे, अपने आप को इंटरनली समझेंगे नहीं, हम अपनी पर्सनालिटी को भी उतना पॉजिटिव नहीं बना सकते। अब पर्सनालिटी को ठीक करने के लिए थॉट सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। अब थॉट सिस्टम को ठीक करने के लिए भी क्या करना है? इंफॉर्मेशन हमें किसी भी सोर्स से आती है और हमेशा आती रहेगी। हम इंफॉर्मेशन के साथ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ये व्यक्ति जब भी आता है कोई ना कोई प्रकार की नेगेटिव इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, ये व्यक्ति जब भी आता है वो कुछ ना कुछ इसी तरह से करता है, तो हम उस सोर्स से अपने आप को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में हम तब भी उस पर ब्लेम डालते हैं, अरे वो आकर के सुना के चला जाता है, हम नहीं सुनना चाहते लेकिन वो तब भी आकर के सुना के चले जाते हैं। अगर उसमें भी सटल लेवल पर अगर हम चेक करें तो एक्चुअली में वो सुना के नहीं जाता है, इंटरेस्ट मेरा होता है सुनने का, जिसके कारण मैं उसके साथ बैठ करके अपना टाइम स्पेंड करती हूँ और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती हूँ। जिस प्रकार की मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ और जब उसको प्रोसेस करके थॉट सिस्टम में लेकर के आती हूँ और प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती हूँ, अब जिस प्रकार से मैं उसको प्रोसेस करती हूँ उसके अकॉर्डिंगली मेरा एटीट्यूड बनता है। आपको पता है हमारे इन डीप स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है दृष्टि, वृत्ति और कृति। जो देखते हैं उससे मेरे अंदर की वृत्ति बनती है, यानी कि एटीट्यूड बनता है, और जो अंदर से एटीट्यूड बनता है उसी अकॉर्डिंगली हम कर्म करते हैं।
ये सारे चार्ट को 3 शब्दों में अगर डिफाइन करें, दृष्टि, वृत्ति और कृति, तो बाहर की चीजों को डील करने के लिए सबसे पहले अपने अंतर के संसार से हमें डील करने की जरूरत है। अपने अंदर से अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मेरे अंदर के संसार में क्या चल रहा है। बाहर तो जो चल रहा है वो तो स्पष्ट रूप से मैस दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा अंदर क्या चल रहा है। और फिर हम अपने ही थॉट्स के वाइब्रेशंस के कारण जो ये सारा चार्ट प्रोसेस करते हैं, अपने भाग्य का, अपनी डेस्टिनी का निर्माण करते हैं। आप कहेंगे इससे डेस्टिनी कैसे क्रिएट हो सकती है? हमारे हर थॉट में पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं। जिस प्रकार का थॉट क्रिएट होता है उस प्रकार के वाइब्रेशन उस थॉट के हमारे आसपास हमारे बनते हैं। कैसे बनते हैं? मान लीजिए आपने कभी ठहरे हुए तालाब के पानी में पत्थर मारा है, जरूर मारा होगा, मारा नहीं होगा देखा होगा। क्या होता है, जैसे ही हम ठहरे हुए पानी में पत्थर मारते हैं, क्या होता है, उसका रिपल्स इफेक्ट क्रिएट होता है और वो बिल्कुल तालाब के कोने तक जाता है, जहां तक तालाब एंड होता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने अंदर माइंड में, अपने मन में जिस प्रकार का थॉट जनरेट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का वाइब्रेशन मेरे आसपास के चारों ओर एनवायरनमेंट में फैलता है। चारों ओर का वातावरण उस प्रकार के वाइब्रेशन से इम्पैक्ट करता है। और सिर्फ वाइब्रेशन से वातावरण इम्पैक्ट नहीं करता, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको भी उस तरह की एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली थॉट्स क्या है? एनर्जी है। अब मैं कौन सी एनर्जी सारा दिन ट्रांसफर करती हूँ, इस पर एक बहुत ब्यूटीफुल रिसर्च हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च है। इसको आप चाहें तो यूट्यूब पर ये वीडियोस अवेलेबल है। इसका ब्रह्मा कुमारी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंटिफिक रिसर्च जो स्पिरिचुअलिटी भी इसको कहती है। उस फिल्म का, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है द सीक्रेट। आप में से शायद बहुतों ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो कभी समय निकाल के इसको देखिएगा। 40 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है। उसके अंदर दिखाया गया है, अगर मैं अपनी विल पावर को, इसमें विल पावर शब्द यूज किया गया लेकिन एक्चुअली माइंड मैकेनिज्म का उसके अंदर सारा वर्क है। अगर मैं अपने मन की शक्ति को प्रॉपर रीति से यूटिलाइज करूं तो मैं लाइफ में वो प्राप्त कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल वीडियो के अंदर दिखाया गया है। अब आज हमारा जो अंदर मन की शक्ति है वो कहाँ जा रही है? शक्ति अंदर में है लेकिन वो कहाँ जा रही है? वेस्ट। हाँ, 4 प्रकार का थॉट सिस्टम है। फर्स्ट टाइप ऑफ थॉट्स है पॉजिटिव थॉट्स, यानी कि सकारात्मक विचार, जिसमें शुभ भावनाएं, शुभ इच्छाएं, शुभ कामनाएं भरी हुई हैं, पॉजिटिविटी। दूसरे प्रकार के थॉट्स हैं नेगेटिव थॉट्स, बुरी भावनाएं, बुरी इच्छाएं, बुरी कामनाएं, इनसिक्योरिटीज, फियर्स, कॉम्प्लेक्सिटीज, किसी भी प्रकार की और नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं, दैट इज द नेगेटिव थॉट सिस्टम। तीसरे प्रकार का थॉट सिस्टम है नेसेसरी थॉट सिस्टम। नेसेसरी थॉट्स यानी कि सारे दिन में मुझे जो काम करने हैं, अपने काम से संबंधित जो थॉट्स चलते हैं, अभी मुझे यहाँ जाना है, रेडी होना है, ये प्रोजेक्ट पर काम करना है, ये सबमिट करना है, ये लेना है, ये छोड़ना है, ये बेचना है, ये खरीदना है, व्हाटएवर रिलेटेड टू योर वर्क। और चौथे प्रकार के जो विचार हैं वो है वेस्टफुल थिंकिंग, व्यर्थ विचार। इसमें मेजॉरिटी हमारे अप्रोक्सीमेट 80% हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे पास्ट को लेकर के चलते हैं। अभी अगर हम चेक करें, क्या मैं ये सेशन जो सुन रही हूँ, क्या मैं 100% यहाँ पर अवेलेबल हूँ? जस्ट चेक। 1 मिनट की, कुछ सेकंड्स की चेकिंग में हमें पता चल जाएगा। और आज आप अपने डीपली चेक कीजिएगा, अभी से लेकर रात तक मेरे थॉट पैटर्न में कौन से तरह के विचार ज्यादा चलते हैं। इट इज नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट और पॉजिटिव। नेगेटिव और वेस्टफुल थिंकिंग आत्मा की, मन की शक्ति को जल्दी जल्दी ड्रेन करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपने रात को अपना मोबाइल फुल 100% चार्ज किया था,
मॉर्निंग में उठते ही आपने इंटरनेट मोबाइल डेटा ऑन कर दिया, साथ साथ में आपने यूट्यूब चलाया और उस पर यूट्यूब पर वीडियोस देखना शुरू कर दिया। आप लगातार उसको देखे जा रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा। मोबाइल की बैटरी आखिर कब तक चलेगी? 5 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा। वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है, रेड ब्लिंक करना शुरू कर देती है। और जब हम जैसे ही देखते हैं, उसका कनेक्टर लेते हैं, चार्जर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उसको फटाफट से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। मेरी चार्जिंग का क्या? मैं रात को सोती हूँ, बॉडी चार्ज हो जाती है। बॉडी चार्ज हो जाती है इन द सेंस कि साइंटिफिकली कहा जाता है कि सारे दिन में जो काम करके हमारे टिश्यूज और ये सब जो ऐसे थोड़े बहुत टूट जाते हैं, जब हम सोते हैं बॉडी को रेस्ट देते हैं तो सारे फिर से जुड़ जाते हैं, न्यू टिश्यूज भी निर्माण हो जाते हैं। बॉडी को रेस्ट दे दिया, काम से रेस्ट भी ले लिया, लेकिन अपने आप को कितना चार्ज किया? अब क्योंकि सारा दिन नेगेटिव और वेस्टफुल थिंकिंग अगर ज्यादा है, पास्ट को ज्यादा सोचते रहते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते रहते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसकी वजह से ऐसा होता है, ये अगर ऐसा ना करे तो मेरी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो, मेरी लाइफ से ये वाला पार्ट ना निकल ही जाना चाहिए। ये सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, वेस्टफुल थॉट पैटर्न्स मेरी आत्मा की शक्ति को जल्दी 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 बहुत फास्ट ड्रेन करते हैं। और आपको पता है, मोबाइल की बैटरी जैसे रेड होते ही ब्लिंक करना शुरू कर देती है ना कि मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ, मुझे चार्ज करो, सिग्नल देती है। हमें भी सिग्नल मिलते हैं। कौन से सिग्नल मिलते हैं? लाइफ में हम किसी छोटी सी बात पे एकदम इतना बड़ा रिएक्शन दे देते हैं, ये सिग्नल है कि मेरी बैटरी कम हो रही है। मैं बहुत जल्दी हताश हो जाती हूँ, डिसहार्टन हो जाती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती, ये भी सिग्नल है। कोई मुझे कुछ कर देता है, कह देता है, मैं छुई मुई के पौधे की तरह एकदम सिमट जाती हूँ, मेरा संसार ही जैसे खत्म हो गया हो। जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, टच मी नॉट, टच करो तो एकदम सारा सिकुड़ जाता है, उसको 4-5 घंटे लगते हैं फिर से ठीक होने के लिए। वो प्लांट शायद आपने देखा हो, पता नहीं, नहीं देखा हो। ठीक इसी तरह से हम लोग हो गए हैं। किसी ने थोड़ा सा पिंच किया और मैं एकदम छुई मुई की तरह, बस पता नहीं क्या हो गया, कोप भवन में चले जाते हैं, कितने कितने दिन उसमें पड़े रहते हैं। ये भी सिम्टम है मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अपने अंदर की बैटरी को चार्ज करना है। आपको पता है, हमारे यहाँ कहा जाता है पॉजिटिव सोचना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन हमारी थिंकिंग एलिवेटेड होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव थिंकिंग एंड एलिवेटेड थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग, इसने मुझे कुछ कहा, मैंने इसको डील कर लिया, मैंने उसको इन रिटर्न कुछ भी नहीं कहा, दैट इज ओके, और मैंने कोई संकल्प भी नहीं चलाया उसके लिए, नेगेटिव थॉट भी नहीं चलाया, दैट इज ओके, दिस इज द पॉजिटिव थिंकिंग। एलिवेटेड थिंकिंग, उसके बिहेवियर पैटर्न को समझ करके मैंने अपने बिहेवियर के अंदर चेंज किया, अपने आप को मोल्ड किया, उसके साथ में फिर से उसी खुशी के व्यवहार के साथ काम में आऊं। दिस इज एलिवेटेड थिंकिंग, दिस इज डीप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आज हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, क्या मैं आज अपने आप को मैच्योर कह सकती हूँ? क्या मैं इतना अच्छे से अपनी सिचुएशंस को डील करके सामने वाले की हर चीज को समा सकती हूँ अपने अंदर, और फिर भी उसके साथ उतने अच्छे से व्यवहार में आ जाऊं? या अभी तक भी ओवर थिंकिंग चलती है? अगर ओवर थिंकिंग चलती है मीन्स कंप्लीटली मुझे अच्छे से मैच्योरिटी अपने अंदर लाने की जरूरत है। सो अपने इस इनर मैकेनिज्म को समझ करके उस अकॉर्डिंगली हमें कार्य करने की जरूरत है। तो चेंज यहाँ एक्शंस में, पर्सनालिटी में, बिहेवियर में नहीं लाना है, चेंज अपने थॉट पैटर्न्स में लाना है। मुझे क्या सोचना है, आई हैव टू चूज। मुझे अपने आप को कैसे डील करना है, आई हैव टू चूज। अब थॉट्स को कैसे डील करना है,
आपको अगर मानो फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास 1 घंटे में कोई व्यक्ति आ जाए और कहे कि मैं ना सुसाइड करने जा रहा हूँ, बस मैं जिंदगी से थक गया हूँ, आप कहेंगे अच्छा अच्छा तुम सुसाइड करने जा रहे हो, कोई बात नहीं चले जाना, लेकिन पहले मेरे पास बस आधा घंटा बैठ जाओ। वो कहेगा नहीं मुझे नहीं बैठना, कहेगा बस आधा घंटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, बस ऐसी थोड़ी सी बातें करते हैं। उस आधे घंटे में आप अपना 100 से 200% लगा देंगे कि वो व्यक्ति जो करने जा रहा है वो ना करे। आप उसको इतना प्यार से समझाएंगे, उस आधे घंटे में इतना प्यार से उसको डील करेंगे, हर एक ज्ञान की, हर एक नॉलेज की पॉइंट्स उसको समझाएंगे। ठीक यही कार्य मुझे अपने आप के साथ करना है। स्ट्रेस को डील करने के लिए नेगेटिव आएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूं, इतना सारा जो कोविड चल रहा है, इतना सारा जो सिचुएशंस बाहर चल रहे हैं, लोग इतने इनसिक्योर हैं, इतना अंदर से डरे हुए हैं, पता नहीं क्या आजकल वो ब्लैक फंगस वायरस भी सुनने में आ रहा है, कुछ तो ऐसा सुनने में आ रहा है न्यूज में, तो वो उससे तो और भी ज्यादा डरे हुए हैं। एक बहन का मेरे पास फोन आया, कहती है सिस्टर कोविड तो चलो ठीक है, हमारी सारी फैमिली ने रिकवर कर लिया, लेकिन मैं 4 दिन से सोई नहीं हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है मैं इसलिए नहीं सोई हूँ, मुझे ना डर लग रहा है वो नया जो वायरस आ गया है ना, उससे हमें कुछ हो न जाए। आप सोचो कितनी इनसिक्योरिटी है अंदर। आपको नींद नहीं आ रही 4 दिन से, क्यों? क्योंकि अंदर में इतने थॉट्स चल रहे हैं। सोचो ये जो थॉट्स का वाइब्रेशन इतना सारा एनवायरमेंट के अंदर जा रहा है, इतना सारा नेगेटिविटी जो ऑलरेडी, इतने सारे लोग जो दुनिया के हर व्यक्ति जो इतना नेगेटिव या वेस्टफुल थिंकिंग सोच सोच के उस वातावरण के अंदर उस एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है। सोचो मुझे अपने आप को सस्टेन करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। अपने आप को तो मुझे सस्टेन करना ही करना है। अब मैं अपनी सेल्फ केयर भी कर लूं ना, वो भी वातावरण को सहयोग देना है। मेरी ड्यूटी क्या बनती है? सुबह से लेके रात तक न्यूज़पेपर उठा के न्यूज सुन सुन के अपने थॉट्स की जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सोच के, नेगेटिव बातें करके, नेगेटिव एक दूसरे को सुना करके, एक दूसरे को और फियर में लाके, इनसिक्योरिटी में लाके, इज दिस माय ड्यूटी? क्या ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वातावरण को और भी पॉजिटिव एंड प्योर वाइब्रेशंस देना, ना कि इनसिक्योर होके डर के अंदर रह करके अपने आप को गिराने की जरूरत है। हम सब मिल करके सिर्फ अगर इतनी सी भी कोशिश करें कि आज से मुझे कोई नेगेटिव, मेरी वजह से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं जाना चाहिए। सोचो नेगेटिव ऑलरेडी इतना वाइब्रेशन है, और कोई व्यक्ति उसके अंदर बीमारी से जूझ रहा है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, वो ऑलरेडी फिजिकली भी वीक है, मेंटली भी वीक है, एनवायरमेंट से ऐसी एनर्जी को कैच करेगा, तो क्या वो आत्मा सस्टेन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये भी सटल रूप से मुझे चेक करने की, ये भी मेरा सटल कर्मा है कि मुझे पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बनाना है, मुझे पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में फैलानी है। ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले सेल्फ केयर। मैं डिस्टर्ब हो गई, कोई व्यक्ति मुझे दुनिया में मदद नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति मुझे इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो मुझे उठा दे ऊपर। मेरी फैमिली तक नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि बाहर से तो वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इंटरनली अगर मैं डिस्टर्ब हूं ना, वो भी कुछ नहीं कर सकते। सो मुझे अपने आप को अपनी केयर करनी है। सेल्फ केयर इज मैंडेटरी। हाँ, अपनी केयर करके मुझे अपने आप को आगे लेकर के जाना है। क्यों? बहुत सुंदर ये पिक्चर इसके अंदर दिखाई है। द ओनली पर्सन दैट कैन सेव यू इज यू। Nobody else can save you. Nobody else can, support you internally. क्योंकि हर आत्मा के लिए सेम सिचुएशंस हैं। अगर आज मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं कहती हूँ मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोगों को भी मैं अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती। सो हर चीज से सीखना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमने 2-3 चीजें डिस्कस की। पहली चीज हमने डिस्कस करी कि हमें अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करना है, हमें अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग देनी है। सेल्फ काउंसलिंग दे करके अपने आप को बार बार उस नेगेटिव सिचुएशन से उभारने के लिए अपने आप को बैठ करके समझाना है कि दिव्या इट्स ओके, हो गया ना,
इस बात को लेट गो करो. इट इज ओके, नॉट अ बिग डील. आपको और आगे बढ़ना है. तो पहला है थॉट पैटर्न्स चेंज करना, दूसरा है सेल्फ काउंसलिंग करना, तीसरा हमने चेक किया कि हमें सेल्फ केयर करनी है, अपने आप को बचाना है हर नेगेटिव चीज से, हर नेगेटिव बातों से, अपने आप के नेगेटिव संकल्पों से भी बचाना है. हमें एलिवेटेड की ओर जाना है, डिग्रेड अपने आप को नहीं करना है. अपनी शक्ति को बढ़ाना है. शक्ति को बढ़ाने के लिए, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छे से मदद कर सकता है. मेडिटेशन कोई चमत्कार नहीं है. मेडिटेशन का मैजिक क्या है? जब हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जहां पर हम अपने थॉट्स को एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं. दिस इज मेडिटेशन. अभी हमारे थॉट्स यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, सारी एनर्जी को कलेक्ट करके सिर्फ एक दिशा में अपने आप को, अपनी सोच को आगे लेकर के चलना, दैट इज मेडिटेशन. और चौथी रेमेडी, ये जो मेडिटेशन है, ये हमें मदद करती है अपने अंदर के थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए. मेडिटेशन हमको मदद करता है अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. मेडिटेशन हमको मदद करता है अपने परसेप्शन को अच्छा बनाने के लिए, अपना परसेप्शन अच्छा बनाने के लिए, देखने का नजरिया अच्छा करें. हर चीज में अच्छाई है. 100% गंदगी किसी चीज में नहीं है. 99% गंदगी हो सकती है, 1% अच्छाई है. उस 1% अच्छाई को सिर्फ उठा लें हम, गुणग्राहक दृष्टि को अपना लें. इन सारी नेगेटिव में अच्छी चीज को उठाने की जरूरत है. अच्छी चीज को उठाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें. ठीक है. और एक सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी. उसके बाद हम थोड़ी देर के रिलैक्सेशन मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम सेशन को एंड करेंगे. और लास्ट में अगर किसी के क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट में लेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लेट गो ऑफ योर पास्ट मेमोरीज, पास्ट टेंडेंसीज, इवेंट्स, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं. क्यों लेट गो करने की जरूरत है? अंदर में चीजें रख रख के उसका कुछ भी नहीं बन रहा है. वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं. मेरे हाथ और पांव दोनों बंध गए हैं पास्ट में. इसीलिए अपने आप को पास्ट से मुक्त करें. जो बीत गया सो बीत गया. आज अपने आप के साथ बैठ करके उस आत्मा को, जिसके साथ वो घटना घटित हुई, उस घटना को, अपने आप को, तीनों को माफ कर दे, फॉरगिव कर दे. उस घटना में अपने आप को मैंने क्यों कहा, मैंने अपने आप को इतने समय से वो बात अपने दिल के अंदर रख रख के मैंने अपने आप को कितना हर्ट किया है. तो मुझे अपने आप को भी सॉरी कहने की जरूरत है. सामने वाले के साथ तो जो घटना घटित हुई उसने भी मुझे शायद हर्ट किया होगा, उसको भी माफी दे दे और माफी मांग ले. कहने की भले आप सामने से बोल करके ना करें, लेकिन उसको अपने सामने इमर्ज करके, उसको अपने सामने ला करके, एकदम साइलेंस से बैठ के अपने थॉट्स के द्वारा उसको इमर्ज करके और उसको अपने दिल की बात कह के उसको माफ कर दे और उससे माफी ले ले. आज अपने पिछले कार्मिक अकाउंट्स के चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ने की जरूरत है. स्ट्रेस का कारण है पास्ट की चीजों को कलेक्ट करते 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 करते. स्ट्रेस कोई एक साथ नहीं हो जाता. आज एक घटना की आपने मुझे सपोज कुछ कहा और मैं स्ट्रेस में चली गई, डिप्रेशन में चली गई, ऐसे स्ट्रेस नहीं होता है. स्ट्रेस होता है जब चीजों को इकट्ठा करते जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करते जाते हैं, उसका अकाउंट बनाते जाते हैं इकट्ठा करके, और फिर एक साथ जब उसका बर्स्ट होता है, दैट इज स्ट्रेस. अंदर मसाला भरते जाते हैं ताकि वो पटाखा अच्छे से आवाज करे. हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं है. इससे आपको एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा और ही आत्मा की शक्ति कम होगी. जो हो गया, लेट गो ऑफ योर पास्ट, लेट इट बी. जो कुछ भी घटित हुआ उसको जाने दे. उसको जाने देने के लिए एक बहुत सुंदर टेक्निक है. मैं इसको प्रैक्टिकली खुद भी अप्लाई करती हूँ. कैसे उसको क्या करना है लेट गो करने के लिए?
इसको साइंटिफिक टेक्निक भी कह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है हमें किसी के साथ शेयर करना है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो आज गॉड सुप्रीम पावर को अपने आप के सामने इमर्ज करें, उसको एज अ फ्रेंड अपने सामने इनवाइट कर लें, और उसको सामने इनवाइट करके एक लेटर लिखें उसके नाम। उस लेटर के अंदर जो भी बातें अंदर भर के रखी हुई हैं, जो अंदर में पेन दे रही है, बहुत दर्द दे रही है, जो अंदर में मुझ आत्मा को सुकून से रहने नहीं दे रही है, जो अंदर में कोई गिल्ट है, अंदर में कोई ऐसी बात है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, वो सारी बातें उस लेटर में लिख दीजिए। और ऐसा महसूस कीजिए कि भगवान आपके बिल्कुल पास में बैठा है और आपकी हर बात को सुनता जा रहा है, बहुत प्यार से आपकी हर बात को सुन रहा है, और एक्चुअली में वो फ्री है, वो सुन सकता है। शायद दुनिया में मेरी कोई बात को सुने और उसको अनुभव करके और मेरे को सही गाइडेंस दे, वो भी शायद पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन गॉड इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर, जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज हिम, हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, और अपने लेटर में वो सारी बातें लिख दे। उसके बाद भले आप वो लेटर फाड़ दे, जला दे, जो करना चाहे उसके साथ वो आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो सारी बातें लिखने के बाद बिल्कुल साइलेंस में, डीप में, अपने साइलेंस में बैठ जाएं, और अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करते हुए, जैसे मन से सारे बोझ उतर गए हों, और उस शांति से उस परमात्मा को याद करें, अपने अंदर वो शक्ति भरें, क्योंकि कुछ खाली हुआ है ना, तो खाली स्थान को भरना पड़ेगा, अदरवाइज फिर नेगेटिव भर जाएगा। और ये प्रोसेस हम बार बार जब तक वो बात भूल नहीं जाती, आप देखिएगा थोड़े टाइम में आपके मन से वो बातें भूलती जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा मुझे तो याद ही नहीं रहता, क्लियर होता जाएगा, मन सा क्लियर, साफ होती जाएगी। और जब मन क्लीन एंड क्लियर होता जाएगा, तो हम उस क्लीन और क्लियर मन को और अच्छे से परमात्मा के साथ कनेक्ट करके अपने अंदर वो पॉजिटिविटी की चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अभी हम मेडिटेशन को थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करते हैं। स्लाइड्स तो अभी और भी हैं, लेकिन अभी क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं इसको यहीं पे क्लोज करती हूँ। हमने 4 से 5 मेडिटेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया। अभी हम 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एकदम बैकबोन स्ट्रेट कर लें, बिल्कुल साइलेंस की स्टेज में आ जाए, बाहर की सभी बातों से अपना ध्यान हटाकर चले अपने अंदर की ओर। महसूस करें जैसे जैसे मैं गहरी सांस ले रही हूँ, वातावरण की पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर जाती जा रही है। धीरे धीरे जेंटली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब देखिए अपनी लाइफ की जर्नी को, बचपन से लेकर अब तक मैंने बहुत सारे रोल्स प्ले किए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही हूँ। बहुत सारे इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अप्स एंड डाउन्स हुए। आज अपने आप को देखिए, इन सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाली मैं बहुत पीसफुल बीइंग, जैसे गहरे नीले आसमान में कोई सितारा चमकता हो,
ठीक इसी तरह से मिडल ऑफ द फोरहेड एक बहुत ब्यूटीफुल स्टार, ये मैं I am peaceful being. सभी रोल्स को प्ले करने वाली, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाली मैं शक्ति, I the being is very peaceful and pure. और इसी पीस में, शांति में रहते हुए मुझे अपने हर रोल को प्ले करना है, हर पार्ट प्ले करना है। Because peace is my original nature. मैं शांत हूँ, मैं पॉजिटिविटी से फुल हूँ। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti Divine. Om Shanti. If any one of you have any questions and queries, you can type in chat box or you can unmute yourself and you can ask. Ma'am, Hanji. ma'am, I have one question. Yes, Ma'am, in the please. last part of the webinar, as you were telling us about the meditation, ma'am, can you tell me that how we can connect ourselves to the divine power through meditation? Sister, very nice. बहुत अच्छा question है. अपने आप को चार्ज करने के लिए it is very important. और राज योगा meditation जो है, इसमें हमें पहले कुछ नॉलेज को समझना जरूरी होता है, क्योंकि योग लगाने के लिए यानी मेडिटेशन करने के लिए कुछ ज्ञान की गहराई, डेप्थ ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको उस चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की डिटेल के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उससे कैसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी व्यक्ति से मिलने के लिए कहा जाता है, मानो आपको यूनिवर्सिटी से कहा जाए कि ये लेटर आपको पहुंचाना है, इस व्यक्ति को पहुंचाना है, कहाँ है, कौन है, कहाँ उसका एड्रेस है, कैसा व्यक्ति है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसको ये क्यों कहना है। जब आपको ईच एंड एवरी डिटेल पता नहीं होगी, तब तक आप उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर सकते। आप शायद काम भी पूरा कर दें या काम पूरा न भी कर पाए, दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से मेडिटेशन में सुप्रीम पावर से कनेक्ट करने के लिए, उसकी प्रोसेस को जानने के लिए बेसिक हमारा मेडिटेशन कोर्स होता है। उस बेसिक मेडिटेशन कोर्स के अंदर हम बेसिक्स ऑफ
द राजयोगा मेडिटेशन की बेसिक्स को हम डिस्कस करते हैं, और जब उसको समझते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, देन फिर हम उसके साथ जो उसकी डीप प्रोसेस है मेडिटेशन की, वो हम जान पाते हैं। अभी आपने ये जो मेडिटेशन, रिलैक्सेशन मेडिटेशन किया, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा आपने उसको टेस्ट किया है, लेकिन वो पूरा उसका टेस्ट क्या है, पूरा उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसको आपको अनुभव करने के लिए मेडिटेशन कोर्स समझना पड़ेगा। बाकी हमारा मेडिटेशन कोर्स अभी हम एक न्यू बैच शुरू करेंगे, तो अगर आप उसको लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। सिस्टर उमा है और सिस्टर अंजलि जी है, who are the main coordinators of today's program. So both of you can help you, both of them can help you. We will send the link and registrations and all the details of the program to both of them, और आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं और मेडिटेशन कोर्स सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस को रिद्धि जी समझना पड़ेगा, एंड देन आप अपने घर में बैठ करके भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके ओके, किसी और का कोई प्रश्न है? Yes, ma'am. Some of the students have Yeah. given their questions. So can I ask them? Yes. Yeah, sure, please. So, yes. So one of the student is asking, like, is this true that stress can be good too? Stress can be good too. Actually, Yes, stress word is not actually correct. It is not good itself. So how can its effect can be good? So stress is actually, हमें stress ना हो तो अच्छा है, peaceful state. अब ऐसे तो देवताएं जो रहते हैं, I just wanted to give you an example. क्या विष्णु जी ऐसा कहते हैं, मुझे इतनी बड़ी धरती से काम कराना है, इतना सब कुछ चलाना है, थोड़ा सा स्ट्रेस तो बनता है? नहीं कहते ना, कभी भी नहीं कहते। बल्कि उनको कैसे दिखाते हैं हम, विष्णु जी का जब भी पिक्चर देखते हैं, क्या पिक्चर देखते हैं, सिंबलाइज क्या दिखाता है, इतने बड़े भव सागर में जहाँ बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, वो और शेष नाग की, 5 मुखी शेष नाग की शैया पर बहुत आराम से पीसफुल स्टेज में लेटे हुए हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं, उनको तो इतनी बड़ी सृष्टि को चलाना है। अंदर की इनर पावर का ये एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सो स्ट्रेस इज नॉट नेसेसरी। एक्चुअली स्ट्रेस शब्द ही है, शब्द ही कह सकते हैं, इट इज एब्सेंस ऑफ पीस। सो एब्सेंस ऑफ पीस कैसे अच्छा हो सकता है? Okay. Yes. indeed. Right. Yes, ma'am. And the other question is, why is uncertainty so hard? Uncertainty is so hard. If you feel so, then it will be. If you feel it is easy, it will be very easy. चीजों को हम जिस तरह से देखेंगे, वो चीजें हमें वैसी दिखाई देंगी। कहते हैं ना, दुनिया को देखने के लिए जो रंग का चश्मा पहनो, दुनिया वैसे ही रंग की हो जाएगी, है ना। इफ यू wear red glasses, you will see the whole world in red, right? So इसीलिए अपने परसेप्शन को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। अनसर्टेनिटीज हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एग्जाम देना होता है, ईयरली एग्जाम देना है, सिलेबस बहुत सारा पढ़ना होता है। अब सारा इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने के बाद पता नहीं ना एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। हम इंट्यूशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, लेकिन वी कैन नॉट प्रोडिक्ट कि यही आएगा। ठीक इसी प्रकार से लाइफ की अनसर्टेनिटीज को हैंडल करने के लिए प्री प्रिपरेशन जरूरी है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना जरूरी है। जब हम ऑलरेडी तैयार होते हैं एग्जाम पेपर को देने के लिए, हम प्री प्रिपरेशन कर चुके होते हैं ना, तो हमें एग्जाम पेपर टफ नहीं लगता। ठीक इसी तरह से लाइफ के एग्जाम में पास होने के लिए, गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें प्री प्रिपरेशन जरूरी है, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है। अगर मुझे वो टफ लगता है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा टाइम लूज किया है अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, सो इट विल नॉट बी लुक्स टफ टू यू। ओके, Thank you, sister. And another question is, like, how to control our overthinking? Like, is there any way we can control our overthinking?
यस डेफिनेटली। अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए हर घंटे में अपने आप को ये रिमेम्बरेंस देना कि मुझे अगले 1 घंटे में कैसी स्मृति के साथ अपने रोल को प्ले करना है। अब उस 1 घंटे में मुझे जो काम करना है उसके लिए इंटरनली अपने आप को तैयार करना। इंटरनल जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल के अंदर अलार्म सेट करते हैं, आप मोबाइल को प्रोग्रामिंग दे देते हैं कि इतने बजे तुम्हें ये रिंगटोन बजानी है ताकि मैं उठ जाऊं, राइट? आप प्रोग्रामिंग सेट कर रहे हैं ना। ठीक इसी प्रकार से ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए माइंड की प्रोग्रामिंग सेट करनी है। अगले इस 1 घंटे में तुम्हें इस तरह से सोचना है ताकि तुम इसको इस तरह से डील कर पाओ। सो ओवर थिंकिंग इज, क्योंकि हम अपने पैटर्न को चेक नहीं करते, जैसा सोचना है वैसा सोचना है वैसा करो। फॉर एग्जाम्पल घर में कोई छोटा बच्चा हो जो क्रॉलिंग करता है, आप उस घर में उस क्रॉलिंग करते हुए बच्चे को नहला के तैयार करके खुला छोड़ दो, उसको कोई खिलौना नहीं दो, घर में खुला छोड़ दो और उसको देखो भी नहीं, ऑब्जर्व भी नहीं करो। 2 घंटे बाद आप जाओ उस कमरे में, क्या हाल होगा उस कमरे का? क्या हाल होगा? कंप्लीटली मैस होगा ना। अगर आपने बच्चे को नहलाया, तैयार किया और उसके बाद आपने जब उसको बिठाया, आपने उसके आसपास चारों ओर खिलौने रख दिए, आपने कहा इसमें तुम खेलते रहो, आप 2 घंटे बाद भी जाओगे ना, बच्चा उन्हीं खिलौनों से खेल रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको प्रोग्रामिंग कर दिया। ठीक इसी प्रकार से इंटरनली मेस क्यों होता है, इंटरनली ओवर थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आप को प्रोग्रामिंग नहीं करते, मन को खुला छोड़ देते हैं। मन तुझे जो सोचना है सोच, तुझे जो देखना है देख, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कलेक्ट कर लो, उसको अपनी मर्जी से प्रोसेस करते रहो। तो क्या होगा? अब हमें उसको प्रोग्रामिंग करनी है कि हर इस अगले 1 घंटे तक तुम्हें पीसफुल रह करके इस काम को करना है। फिर उसके अगले घंटे तक तुम्हें हर सिचुएशन में लवफुल रहना है, किसी को भी चिल्ला के आंसर नहीं करना है, तुम्हें हर एक को डील करते हुए पीसफुली हैंडल करना है। फिर उसके एक अगले घंटे में अपने आप को प्रोग्रामिंग दे दो, इस 1 घंटे में कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है। आपके सामने टेस्ट पेपर आएगा, लेकिन क्योंकि आप इंटरनली प्रोग्रामिंग कर चुके हैं अपने आप को, हो सकता है कि पहली बार आप टेस्ट पेपर में थोड़े से कम मार्क्स लाएं, अगली बार उससे भी ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अटेंशन दे रहे हो और इस वे से ओवरथिंकिंग को खत्म किया जा सकता है। Yes, thank you, Sister Divya. Your words are really like stress buster for all of us. And so I have just one last question. Yes. Like stress sometimes work as a motivating factor too. So is it good or bad for mental health? स्ट्रेस मोटिवेटिंग फैक्टर कभी भी नहीं होता है। एक्चुअली हमने अपने आप को आदत डाल ली है उसी नेगेटिविटी से चलाने की, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अलार्म सेट करते हैं, रात को आप अपने आप को प्रोग्रामिंग करते हैं मुझे सुबह 6 बजे उठना है, आप अलार्म सेट करते हैं, आपको ये भी इंटरनली पता है कि अगर वैसे मैं 6:30 बजे उठूं ना तो मैं जल्दी जल्दी भाग भाग के तैयार तो हो जाऊंगी, हो सकती हूँ, लेकिन 6 बजे उठूं तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल अच्छा टाइम पीरियड है। तो आप अपने आप को बहुत ऐसे विल पावर से, नहीं मुझे 6 बजे ही उठना है, आप अलार्म सेट करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, आपने रात को अलार्म सेट किया 6 बजे का पहला अलार्म, अंदर से विल पावर से आपने अलार्म किया कि मुझे 6 बजे ही उठना है, लेकिन साथ में एक सेल्फ डाउट के साथ शुरू किया, 6 बजे का एक अलार्म लगाती हूँ, सेकंड अलार्म 6:15 का लगेगा, थर्ड अलार्म 6:30 का लगेगा। और होगा क्या, मॉर्निंग में उठेंगे, पहला अलार्म बजेगा 6 बजे का, अंदर से क्या आएगा, अरे दूसरा 6:15 का अलार्म अभी बजेगा, 15 मिनट और सो जाते, 15 मिनट के कंफर्टेबल जोन में भी काम हो जाएगा। दूसरा अलार्म बजेगा 6:15 का, हाँ बस उठ रही हूँ, अभी तो फाइनली उठ ही जाऊंगी, बस सो जाऊं। और फाइनल जब 6:30 का अलार्म शुरू होगा, फिर उसके बाद आप कहें कि नहीं स्ट्रेस तो थोड़ा ठीक है, 6:30 बजे उठूंगी तो काम तो हो ही रहा है ना, काम तो हो रहा है, लेकिन मेरी अंदर की कॉन्शियसनेस के क्या कॉन्शियसनेस के साथ मैं वो काम कर रही हूँ, क्या अंदर से मैं किस प्रकार की लेवल ऑफ थिंकिंग के साथ वो काम कर रही हूँ। अगर मैं दिन की शुरुआत भागते भागते करूंगी
तो सारा दिन कैसा जाएगा। और जब मैं स्ट्रेसफुल कंडीशन से दिन की शुरुआत कर रही हूँ, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, मुझे ऑफिस जाना है, ऐसे रेडी होना है, ये करना है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मेरा ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, इज दिस नेसेसरी? यू टेल मी, इज दिस अ मोटिवेटिंग फैक्टर? नेवर, है ना। वही काम मोटिवेटिंग फैक्टर हम क्यों मानते हैं? हम सोचते हैं अरे मुझे स्ट्रेस करूंगी मैं, मुझे एग्जाम आने वाला, एग्जाम आने वाला, एग्जाम आने वाला, मैं अंदर से ऐसे एंजाइटी के साथ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूंगी ना, शायद अंदर में वो बातें फिट भी नहीं होंगी। लेकिन अगर इसको मैं अगर मोटिवेटिंग फैक्टर समझती हूँ ना, सो इट इज माय बिग मिस्टेक। क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में क्या फिक्स हो रहा है, क्या आप अपनी कॉन्शियसनेस को 100% यूटिलाइज कर पा रहे हो? आप एंजाइटी में पढ़ रहे हो, क्या आप अपने आप को मेमोराइज करा सकते हो? चीजें नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आधी शक्ति कहाँ जा रही है? एंजाइटी में जा रही है। आधी शक्ति अपने आप को गलत तरीके से मोटिवेट करने में जा रही है। सो उसके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं होंगे। नेगेटिव चीज को यूज करके पॉजिटिव रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिल सकते। Okay, thank you so much, Sister Divya, for your enlightening words. I believe now all of us would be able to overcome all the stress and uncertainties very clearly and efficiently. And so now I would like to invite Dr. Kalpana Devi ma'am for the token of thanks. Good evening, everyone. I'm here to present the vote of thanks for today's wonderful event. First of all, I would like to thank our honorable guest, Sister Divya, for sparing her valuable time and enlightening us with her words of wisdom. I want to thank VC Sir, Prachi Ma'am, and Director Sir for their encouragement to organize webinar on contemporary issue, that is overcoming stress of uncertainty. In the time of pandemic, most of the people are living under stress and uncertainty, and motivational word by Sister Divya will definitely help to live smooth life. Today's webinar was full of knowledge and insightful to see the positive part of life. On the behalf of NSS unit, I want to express my heartfelt gratitude to all the coordinators and participants. Finally, my reverence is toward the parents of the student who graced the occasion. Thank you very much. Thank you, sister. Om Shanti. Thank you, Sister Divya. Thank you. Thank you, sister. Thank you. All of you. Thank you. Thanks. Thank you very much. It was Thank a you. wonderful session, ma'am. Thank you. Thanks to you too, sister. Thank you. Thank you. Thank you, Sister Divya. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Om Shanti.